A very good morning to all lovely students. We are starting the unit number 3 for IoT 601. Okay, so what I'm going to cover with you in this chapter is searching of Internet of Things, a search architecture for social and physical sensors. I'll be covering sensors also, local event retrieval. What are the events in IoT? How to retrieve that data? Sensor metadata stream to identify topics of local events in city. This will be extremely interesting. Venue recommendation. Okay, excellent. When you're trying to search what is the best restaurant near me, right? That is the venue for you. We'll see how it can be done or it is done with the help of IoT. Then I'm going to discuss development tools for IoT analytics application. Though we have done already in chapter number 1 and 2, IoT analytics as a service. It's extremely interesting. What is a product and what is service? You will be very happy and excited to know all these things. Architecture of IoT analytics as service, sensing as service, scheduling, metering, and service delivery. Sensing as a service with example from sensing as a service to IoT analytics as a service. So these are the main subtopics of this chapter, and be ready for the next slide. Okay, here I go. Okay, students. So as I mentioned, first and foremost, I'm going to cover what is sensor, and I always emphasize if we can define अगर हम किसी चीज को परिभाषित कर सकते हैं, हमें वो चीज आधे से ज्यादा समझ में आ जाती है. We understand that particular concept more than 50% if we understand the naming convention and the definitions. Let's see what is sensor. Sensor is a device or component that detects changes in its environment and converts those changes into measurable signals or data. This is extremely important keyword. Converts those changes into measurable signals or data. These signals then can be interpreted, processed, or transmitted for various purposes such as monitoring, control, or analysis. Sensors are widely used in numerous applications across industries, including automotive, aerospace, healthcare, manufacturing, environmental monitoring, and consumer electronics. We will see this case studies in chapter number 5, but just to give an example how the sensor converts the changes into measurable signals. I'll give you an example for healthcare, very important. Suppose uh, there is a maybe unfortunate there is an old age patient in our home, and we have put a gadget around his maybe the risk that if the particular maybe the pulse is going beyond certain threshold, मान लीजिए उनकी दिल की धड़कन या जो ब्लड प्रेशर है वो एक थ्रेशोल्ड से ऊपर हुआ, तो वो आईओटी डिवाइस एक सिग्नल करेगी, राइट? तो मेजरेबल सिग्नल उसमें बीप करने लगेगा, आवाज आने लगेगी, तो आपको पता चलेगा कि हमारे घर में जो पेशेंट है उससे हमारी जरूरत है. समझे आप? मेजरेबल output or signal or data. Okay, this is one example. Let's go to the next slide. Okay, now let's discuss what are the sensor features. First is the connectivity. Sensor need internet connectivity, right? Then data collection. Sensor collects the data, it detects the changes in environment, convert them in measurable signal or data. Automation, it automates thing. Real time monitoring, मतलब जो चीजें जब घटित हो रही हैं, जो घटना है उसी वक्त सेंसर उसको डिटेक्ट करके मॉनिटर कर सकता है. एनर्जी एफिशिएंट, डू यू रिमेंबर इन चैप्टर नंबर 2 आई डिस्कस लोरा एंड एमक्यूटीटी विथ यू, राइट? वही उसी से रिलेटेड है. एनर्जी एफिशिएंट, स्केलेबिलिटी, इसकी कैपेसिटी को कम या ज्यादा किया जा सकता है. मान लीजिए सेंसर अगर 1 फीट में कोई चेंजेस डिटेक्ट कर सकता है, उसको हम 2 या 3 फीट भी कर सकते हैं या 1 फीट से कम भी कर सकते हैं. सिक्योरिटी इज इट फीचर, काफी सिक्योरिटी इनेबल्ड किया जाता है, उसका डेटा काफी प्राइवेट होता है. इंटीग्रेशन, सेंसर्स आईओटी डिवाइस दूसरी आईओटी डिवाइसेस से मिल के काम करती है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. ये सारे सेंसर के फीचर है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, let's progress our discussion further. Now, the categorization of sensor. We can categorize it first by operational principle. वो कैसे काम करते हैं? Active, passive. Active sensor transmits a signal to the environment and measure the reflected or scattered response, while passive sensor detect natural radiation or emission from the environment or target. तो दोनों में फर्क क्या हुआ? Active sensor खुद शुरुआत पहले करते हैं और फिर
उसको जो उनको उसका रिस्पॉन्स मिलता है, दे कन्वर्ट इट टू मेजरेबल डेटा। और पैसिव सेंसर जो होते हैं वो उनको पहले सिग्नल इन्वायरमेंट से मिलता है और उसके बाद वो उसको मेजरेबल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग और डिजिटल, what does it mean? Analog sensor provide continuous varying electrical signals proportional to the measured physical quantity, while digital sensor output discrete value like 0 1 representing a specific state or level। इसका मतलब क्या हुआ? जो सेंसर एनालॉग आउटपुट जनरेट करते हैं, एनालॉग और डिजिटल में आपको फर्क मालूम है? ओके, लेट मी क्लियर। एनालॉग का मतलब होता है एनालॉगस टू द इनपुट। अगर इनपुट तेज वॉल्यूम, अगर मैं तेज बोलूं तो आउटपुट के उसको पीक पे जाएगा, और अगर मैं धीरे बोलूं तो एनालॉग सिग्नल छोटा बनेगा। दैट इज एनालॉगस टू माय एक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। डिजिटल केवल 0 1 होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो, चाहे कोई जोर से बोले धीरे बोले पिक्चर हो, वो सारा कॉम्बिनेशन 0 1 का होता है। तो बेस्ड ऑन आउटपुट sensors are categorized active, passive, analog and digital। Okay, let's go to the next slide then। Okay, let's see the further categorization by output signal। Electrical sensor output an electrical signal such as voltage, current or resistance। Optical sensor output an optical signal such as light intensity or wavelength। acoustic sensor, acoustic का मतलब होता है sound, use sound waves to measure or detect various parameters। got that? Other classification, absolute or relative। absolute sensor measure against a fixed reference, while relative sensor measure changes from a known starting point। relative का मतलब क्या होता है? मान लीजिए दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही है तो रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है, राइट? एब्सोल्यूट स्पीड जब ट्रेन अकेली चल रही है, दैट इज द डिफरेंस, राइट? सो एब्सोल्यूट और रिलेटिव सिग्नल भी अलग होते हैं। कॉन्टैक्ट versus non-contact, contact sensor require physical touch with the object being measured, while non-contact sensor can measure without physical contact। वो थोड़ी दूरी से भी डिटेक्ट कर सकते हैं चेंज को। So got the categorization of sensor। excellent, let's go to the next slide then। We are continuing our exciting journey। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है। we saw the subtopics, searching IoT data, topic data, right? ये सब बहुत जरूरी है समझना। दिस इज वेरी मच नीडेड टू अंडरस्टैंड हाउ IoT वर्क। स्मार्ट होम का डेटा आपको कैसे मिल सकता है जहाँ पे IoT डिवाइसेस आपने लगाई है, स्मार्ट सिटी कैसे काम करती है, ये सारा उसका क्रक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैं भी अब अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। Please listen and understand very thoroughly, carefully। In the context of sensors and data, a topic subscription refers to a mechanism where a device like a microcontroller or a processing unit register its interest in receiving specific data streams from a sensor or network of sensor। The data stream or topic is usually identified by unique identifier। मान लीजिए आपको मोबाइल पे अपना डेटा चाहिए, आपने IoT डिवाइसेस अपने घर पे लगाई है, किचन में आपने लगाया टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्मोक, लिविंग रूम में आपने लगाया टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अब आपको इन सेंसर का डेटा चाहिए, राइट? अब मान लीजिए टॉपिक क्या होता है, उसके पहले मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपने कोई टीवी चैनल की सर्विसेज ली हुई है, बहुत सारी होती है, राइट? अब उसमें से उनके सारे चैनल तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मान लीजिए उनके पास 1000 चैनल है, आपने सिर्फ 50 चैनल सब्सक्राइब किए हैं, तो वो 50 चैनल आपके टॉपिक से, हर चैनल अपने आप में एक टॉपिक है। अब आप समझे? तो ये इतने सारे सेंसर या इससे भी ज्यादा सेंसर अगर आप लगाएंगे तो वो हर सेंसर का डेटा एक टॉपिक कहलाता है आपके पूरे IoT के नेटवर्क में। तो अगर आपको इन पांचों सेंसर का डेटा चाहिए तो कैसे सब्सक्राइब होगा? एक सेंसर का डेटा चाहिए तो कैसे सब्सक्राइब होगा? मान लीजिए किचन के सारे किचन के आपको सेंसर का डेटा चाहिए तो कैसे सब्सक्राइब होगा? या किचन का एक सेंसर का डेटा चाहिए तो कैसे सब्सक्राइब होगा? इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो लेट्स सी on the next slide how does it happen। okay, let's go। okay, so let's proceed with a very interesting discussion जो IoT का क्रक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल से ये डेटा कैसे हम सब्सक्राइब करते हैं, हाउ डज इट वर्क। I told you the protocol MQTT works on publisher subscriber model, you remember that, right? In this model the above smart home solution might be sending the data to the broker। like हमने S को एक इमेजिनरी ब्रोकर की सर्विस का नाम दे दिया है। आपने लिविंग रूम में दो सेंसर हैं, देखिए दोनों को डिफाइन किया है। किचन में तीन है, हमने तीनों के यूनिक आइडेंटिफायर डिफाइन किए हैं। अगर आपको इनमें से सिर्फ एक डेटा चाहिए तो आपको वो पूरा स्पेसिफिक नाम अपने ब्रोकर को देना होगा कि एस किचन स्लैश स्मोक ही मुझे चाहिए, या दो चाहिए तो दो का नाम देना पड़ेगा। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आपको
कोई लिविंग रूम का पूरा डेटा चाहिए तो s/living/plus अगर आप लगा देंगे तो ऑल द डेटा फ्रॉम लिविंग रूम आ सकता है, और ऐसे ही किचन से भी आ सकता है s/kitchen/plus। लेकिन अगर आपको पांचों सेंसर का डेटा चाहिए तो s/ के बाद आप हैश सिंबल लगा दीजिए। हैश से आपको सारे आपके IoT डिवाइसेस का डेटा मिलने लगेगा। वेरी नाइस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। ओके, तो अगला सब टॉपिक इस चैप्टर का है डेवलपमेंट टूल्स फॉर IoT एनालिटिक्स एप्लीकेशन। ये डिस्कशन फिर सिर्फ 5 सेकंड का है। व्हाई दिस कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1 and 2 फॉर IoT डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन विद एग्जांपल फॉर टूल्स टेक्नोलॉजीज फॉर एवरी स्टेप ऑफ एनालिटिक्स। सो be on top of, you already learned in chapter number 1 and 2. If you want to revise, go to chapter number 1 and 2. Let's proceed with our next slide. ओके स्टूडेंट्स, अगले सब टॉपिक पे चलते हैं जो कि इस चैप्टर का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसर एज सर्विस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IoT एनालिटिक्स एप्लीकेशन एज सर्विस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस इन अ प्रोडक्ट एंड अ सर्विस। मान लीजिए यू बॉट अ कार, अब यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट, अब वो प्रोडक्ट आपके ओनरशिप में है, लेकिन देयर इज अ कार रेंटल सर्विस। मान लीजिए आप वीकेंड पे या 2 या 3 दिन के लिए कार रेंट पे ले रहे हैं, सो यू आर यूजिंग दैट कार एज अ सर्विस थ्रू रेंटल बिजनेस फ्रॉम समबडी एल्स। समझे आप? तो जब आप चीज को खरीद लेते हैं वो आपका खुद का प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन जब आप उसको रेंट पे यूज करते हैं दैट इज अ सर्विस। जैसे कि घर होता है, जैसे आपने घर खरीदा, वो आपका खुद का प्रोडक्ट है, अब आप उसमें चेंज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब आप रेंट पे हैं तो यू आर यूजिंग एज अ सर्विस थ्रू रेंटल बिजनेस बाय समबडी एल्स। गॉट दैट? तो यही रेंटल बिजनेस का कंसेप्ट IT में नहीं था, कंप्यूटर साइंस में नहीं था, तो इसको क्लाउड के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। जब आप क्लाउड पे चीजों को रेंट पे लेते हैं दैट बिकम्स सर्विस, और जब आप कोई चीज खरीद के अपने प्रेमिसाइज में उसको इंस्टॉल करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑन प्रेम। अंडरस्टैंड? तो किन 3 टाइप की चीजों को रेंटल, एज अ रेंटल सर्विस या पे एज यू गो मॉडल से यूज किया जा सकता है, कंप्यूटर साइंस में देखते हैं SaaS, SaaS. What does it mean? Software as service. का मतलब ये होता है, is a cloud-based software delivery model where software applications are hosted by a provider and accessed over the internet. Users subscribe to the software rather than purchasing. मैंने आपको पहले ही बताया, खरीदने की बजाय सब्सक्राइब कर लीजिए, रेंट पे ले लीजिए, जितने टाइम यूज करेंगे उतना ही आपको पे करना है, और यू डोंट नीड टू इंस्टॉल इट लोकली। आपको खुद इंस्टॉल करके उसको अपडेट भी नहीं करना है, वो अपने आप सब आपका क्लाउड वेंडर करेगा। आप सिर्फ यूज कीजिए, आप अपने मेन काम पे ध्यान दीजिए। दिस अलाउ फॉर ऑन डिमांड एक्सेस एंड यूसेज ऑफन थ्रू अ वेब ब्राउजर, जैसे कि गूगल वर्कस्पेस। दूसरा होता है PaaS, पास प्लेटफॉर्म एज सर्विस। ये क्या होता है? इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग। पहले आप क्या कर रहे थे? सॉफ्टवेयर एज सर्विस, किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, आपने उसको रेंट पे लिया। अब आपने प्लेटफॉर्म एज सर्विस लिया, आपने ऐसा प्लेटफॉर्म लिया कि आप अपने डेवलपर्स, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं या उस पर काम करते हैं, तो एज ए डेवलपर आप उसमें अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम पूरी तरीके से आप ही के लिए होगा। जब तक आप उसको कुछ और उससे करने की या उससे कुछ और बिजनेस करने की कोशिश न करें, वो पूरी तरीके से आप ही का प्रोडक्ट है जो आपने इस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पे बनाया है। So, platform as a service is a cloud computing model that provides a complete environment for developing, testing, deploying, and managing application. It's essentially a cloud platform that offers a combination of infrastructure, software, and development tools. Developers can use PaaS to build applications without the complexity of managing the underlying infrastructure. इसमें भी डेवलपर की लाइफ को, सॉफ्टवेयर कंपनी की लाइफ को इजी बना गया। अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने, मान लीजिए अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट अजूर ऐप सर्विसेज, वो सारी एप्लीकेशन में डेवलपमेंट टूल आपको दिए गए हैं। आप खुद ही अपने डेवलपर से प्रोग्राम लिखवा के आप अपना सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हैं। एक्सीलेंट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now, the third type of rental business in cloud is IaaS. It stands for Infrastructure as a Service. Is a cloud computing model where you rent essential IT infrastructure like servers, storage, and networking on demand using a pay-as-you-go model. You get access to these resources without managing the physical infrastructure. जैसे कि EC2 Amazon की तरफ से, इसका बेनिफिट क्या होता है? मान लीजिए आपने एक नई कंपनी स्टार्ट की,
अब आपको नया सर्वर खरीदना पड़ेगा और नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचिए कि वो एंटरप्राइज सर्वर कितना कॉस्टली होता है। वो कोई छोटा सा स्पेस आपको सिर्फ 50 GB और 50 GB आपके लिए तो नहीं दे सकते। वो तो प्री कॉन्फ़िगर होता है। मान लीजिए उसमें 100 टेराबाइट का स्पेस है और आप सोचिए कि वो कितना कॉस्टली होगा। लेकिन अगर अगर आपने नई कंपनी शुरू की, आपने सोचा पहले 6 महीने के लिए तो मुझे सिर्फ 50 GB जगह चाहिए है स्टोरेज के लिए और उसके बाद लगेगी तो मैं बढ़ा दूंगा, तो अब आप सिर्फ 50 GB का रेंट पर पे करेंगे रादर देन कॉस्ट ऑफ एंटायर 100 टेराबाइट। समझे आप इसका बेनिफिट। मान लीजिए आपको पूरी बिल्डिंग नहीं खरीदनी है, आपको तो सिर्फ एक रूम रेंट पे चाहिए, क्योंकि आप तो टेम्पररी कोई कोर्स करने किसी सिटी में गए हैं, तो क्या आप पूरी बिल्डिंग खरीदना चाहेंगे? नहीं, एक रूम रेंट पे ले लेंगे। वही ये बिजनेस क्लाउड में एज अ सर्विस के नाम से किया जाता है। वंडरफुल, आई होप आई एम क्लियर। अब इसके बाद लास्ट स्लाइड है, वी आर अचीविंग माइलस्टोन टू कंप्लीटिंग द चैप्टर नंबर 3 आल्सो, सो व्हाई वी आर वेटिंग, लेट्स गो देयर। ओके स्टूडेंट्स, आपका चेहरा देख तो नहीं पा रहा हूँ कितने खुश हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कितने खुश आप हैं। ये लास्ट स्लाइड है और इससे हमें सारे एज ए सर्विस अब समझ में आने वाले हैं बेस्ड ऑन लास्ट स्लाइड, पास, सैस एंड आईएएस जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। एक एग्जांपल से ही सब क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज सेंसर एज सर्विस, व्हाट इज आईओटी एनालिटिक्स एज सर्विस। तो ये एग्जांपल हम देते हैं। आईओटी एनालिटिक्स एज अ सर्विस इज अ क्लाउड बेस्ड ऑफरिंग दैट प्रोवाइड्स डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज फॉर आईओटी डिवाइस, अलाउिंग बिजनेस टू एनालाइज and enterprise vast amount of data without investing in infrastructure or hiring specialized staff। क्योंकि ये प्रोग्राम किसी डेवलपर से आपने नहीं लिखवाया है, सर्वर आपने नहीं खरीदे हैं, या आईओटी एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर किसी क्लाउड वेंडर ने बनाया या वहां पे होस्ट हो रहा है, आपने इसको रेंट पे ले लिया। जैसे वैसे ही जैसे पूरी बिल्डिंग खरीदने की बजाय आपने एक रूम रेंट पे लेके अपना काम किया था जब टेम्पररी कोर्स कर रहे थे, वैसे ही दिस सर्विस अलाउज कंपनीज टू लिवरेज deep skills of data analytics companies on an as needed basis। Example, discuss tool technologies cloud for every step in IoT data analytics cycle in chapter number 1 and 2, like S3 और QuickSight। QuickSight एग्जाम्पल है AWS की तरफ से, जहां पे डेटा एनालिटिक्स का पूरा प्रोग्राम बनाया जा चुका है। आपको सिर्फ डेटा इंपोर्ट करना है and it can generate report for you, so the making life easy for the users। Okay, so this conclude the chapter number 3। Have a blast. Okay, let's go to the chapter number 4।